شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علیہ سیف اللہ ذوالفقار جہاں کی گلی مل گئی ہم کو مشہد میں جنت پڑی مل گئی کو مشہد میں جنت پڑی مل گئی یا رضا یا رضا بس یا رضا کی ہے دھن مثل بہلول دیوانگی مل گئی زندگی میں ہمیں اور کیا چاہیے وہ ملے دو جہاں کی خوشی مل گئی اور آیا ہوں گزر کر جو درے امام رضا سے اونچا ہوں بہت تخت سلیمان کی ہوا سے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لے کر آپ کا اپنا پروگرام چلو چلیں خراسان. حق چینل کے اسٹوڈیو میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے. بریک سے پہلے ہم نے آپ سے 6 سوالات پوچھے تھے. بہت سے ناظرین نے ہم کو فون کیا اور جواب دیا. کچھ غلط تھے کچھ صحیح تھے لیکن زیادہ تر صحیح جوابات آ رہے ہیں. اس بات کی ہمیں خوشی ہے ناظرین کرام. دوسری بات یہ کہ بریک کے دوران ہمیں کچھ انٹرنیشنل کالز آئے جیسے سعودی اور پاکستان وغیرہ سے یہاں وہاں سے لوگ ہم کو ٹرائی کر رہے ہیں. تو میری ان تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جو حق چینل کا نمبر ایک نہیں بلکہ کئی موبائل سے ٹرائی کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ لائن بزی رہتی ہے اور دوسرے کالرز کو موقع نہیں ملتا. آپ ٹرائی کیجئے. آپ کو پورا حق ہے ہمیں فون کرنے کا لیکن جو نمبر رجسٹرڈ ہو صرف اسی سے ٹرائی کریں ورنہ پھر ہمیں مجبوراً اگر وہ نمبر ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو آپ کا کال ہمیں ڈراپ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ناظرین اکرام جو نمبر آپ کا رجسٹرڈ ہے ہم اسی سے آپ کا کال لیں گے. تو آپ تیار ہیں بالکل. تمام کام سے فارغ ہو کر ٹی وی اسکرین کے سامنے آ جائیے کیونکہ آ رہا ہے اگلا سوال آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر. سوالات کے سلسلے کا 19واں سوال اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا 7واں سوال کہ ان میں سے کس نبی کو اسرائیل بھی کہتے ہیں. ان میں سے کس نبی کو اسرائیل بھی کہتے ہیں. اے جناب ابراہیم علیہ السلام, بی جناب موسیٰ علیہ السلام, سی جناب یعقوب علیہ السلام یا ڈی جناب یوسف علیہ السلام. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اس نمبر پر آپ ہمیں کال کریں. سوال آپ کے سامنے موجود ہے ناظرین اکرام کہ ان میں سے کس نبی کو اسرائیل بھی کہتے ہیں. اے جناب ابراہیم علیہ السلام, بی جناب موسیٰ علیہ السلام, سی جناب یعقوب علیہ السلام یا ڈی جناب یوسف علیہ السلام. ہلو 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 السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلطان علی خان بول رہا ہوں. جی میں سلطان علی خان بول رہا ہوں. آپ اپنا نام پھر سے بتائیے. جی نام بتاؤ. جی سلطان علی خان بول رہا ہوں. سلطان علی خان. ہاں کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ مجگاؤں سے. جی مجگاؤں سے. مسگاؤں سے. جی سلطان بھائی بولیے. ہاں ہاں آپ کا جواب. جی میرا جواب ہے آپ اپنے ٹیلی ویژن کا ساؤنڈ پہلے میوٹ کر دیں. ہیلو. جی ان میں سے کس نبی کو اسرائیل بھی کہتے ہیں؟ اور آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. ہاں سر. بی موسیٰ علیہ السلام. بی یقین ہے آپ کو؟ ہاں ہاں یا سر. ٹھیک ہے آپ کے جواب کو محفوظ کر لیں آپ. ہاں یا سر. ہاں بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. ہاں تھینک یو. ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی مسگاؤں سے سلطان علی خان سے جنہوں نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام. ایک کال اور لے لیتے ہیں سوال کے لیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ زینب دھارسی. زینب دھارسی. جی بولیے. جی اس کا جواب ہے جناب یعقوب علیہ السلام. سی
यानी हमारे ऑप्शन के एतबार से जनाब याकूब अलैहिस्सलाम। जी यकीन है आपको? जी जनाब याकूब को ही इसराइल भी कहा जाता है। जी, और उन्हीं के आल को इसराइल कहा जाता है। जी, उन्हीं की आल को बनी इसराइल कहा जाता है। उन्हीं की आल को बनी इसराइल कहा जाता है। जी अच्छा, तो वो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ही है। जी आपको यकीन अपने जवाब पर? जी पूछ लें कंप्यूटर से। जी ठीक है, कंप्यूटर हमको जो बताएगा वो आवाज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी आएगी। हमको कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी खुदा हाफिज। सवाल था नाज़रीन इकराम के इनमें से किस नबी को इसराइल भी कहते हैं। 2 जवाबात हमें मिले, सुल्तान अली खान मजगांव से और सिस्टर जैनब धारसी। इन्होंने जवाब दिया, सुल्तान अली खान ने कहा जनाब मूसा, बी ऑप्शन, और सिस्टर जैनब धारसी ने कहा सी जनाब याकूब। कंप्यूटर से हम पूछ रहे हैं, कंप्यूटर प्लीज बताइए कि दोनों में से किसका जवाब सही है। सिस्टर जैनब धारसी साहिबा आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल सही है, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सुल्तान साहब आपका जवाब गलत है। लेकिन दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, हमें कॉल किया। और हम बार बार ये कहते हैं कि गलत जवाब देकर मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वो जरिया बने हैं कि जिसके जरिए से एक सही जवाब बहुत सारे हमारे देखने और सुनने वाले के कानों में जवाब जाता है और उनके इल्म में इजाफा होता है। तो आप जरिया बनते हैं एक इल्म पहुंचाने का। तो काबिल मुबारकबाद है आप अपना फोन जारी रखिए और जवाबात देते रहिए। सही या गलत ये देख लिया जाएगा और सही जवाब हमें एक इल्म देकर जाएगा, इसमें कोई मजाके की बात नहीं है। ये हुआ हमारा आज का 7वां सवाल और हमारे सिलसिले का 19वां सवाल। नाज़रीन किराम चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है। आज के हमारे सिलसिले के 20वें सवाल और आज का हमारा जो सिलसिलावार है उसका 8वां सवाल आपके सामने। कंप्यूटर प्लीज अगला सवाल पेश करें। 20वां सवाल है कि आयतुल्लाह शेख कुलैनी ने इन कुतुब अरबा में से कौन सी किताब लिखी। आयतुल्लाह शेख कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुब अरबा आप जानते हैं 4 किताबें हैं, उनमें से कौन सी किताब लिखी। वो 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए तहजीबुल अहकाम, बी मन ला यहज़रुल फकीह, सी अल इस्तिब्सार और डी अल काफी। ये 4 किताबें हैं जिन्हें हम कुतुब अरबा कहते हैं। इन चारों में से आयतुल्लाह शेख कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सी किताब लिखी, यह है हमारा सवाल। कॉल ले लेते हैं नाज़रीन किराम। हेलो हेलो, सलामुन अलैकुम। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुर्तुजा, सैयद मुर्तुजा। सैयद मुर्तुजा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? नागपाड़ा। नागपाड़ा से। जी मुर्तुजा साहब मेरा बताइए। आंसर डी अल काफी। जी डी अल काफी। डी अल काफी। हाँ यकीन है आपको? हाँ, क्या करते हैं मुर्तुजा साहब आप? पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6th स्टैंडर्ड में। 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। हाँ तो आप दीनी किताबें और दीनी मालूमात जमा करते हैं, शौक है आपको? हाँ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। आपके जवाब को महफूज कर लें हम। हाँ ठीक है, आपने बताया सी अल काफी। आपके इस जवाब को महफूज किया जाता है। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, खुदा। सैयद मुर्तुजा नागपाड़ा से हमें कॉल कर रहे थे। इन्होंने बताया अपना ऑप्शन सी अल काफी। इसी सवाल के लिए कॉल और। हेलो
हेलो, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। इस सवाल का जवाब है काफी। आपका जवाब, आपका नाम? मेरा नाम सज्जाद मर्चेंट। सज्जाद मर्चेंट। सज्जाद मर्चेंट साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? डोंगरी से बोल। डोंगरी से बोल रहे हैं। आपका जवाब? अल काफी। अल काफी। इससे पहले जिस ने हमको फोन किया तो उन्होंने भी यही बताया था। यकीन है आपको? हाँ, यकीन है। यकीन है। कितना यकीन है? पूरा 100%। पूरा यकीन है। जी ठीक है, आपके यकीन को देखते हुए हम कंप्यूटर से पूछ लें। जी हाँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। हम कंप्यूटर से पूछने जा रहे हैं, आप देखते रहिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ठीक है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन किराम, 2 कॉल सईद मुर्तजा नागपाड़ा से, सज्जाद मर्चेंट डोंगरी से, दोनों ने कहा इसका जवाब है डी, अल काफी। प्लीज बताइए इनका बताया हुआ ऑप्शन सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जिस पर ऑप्शन मौजूद है अल काफी। आयतुल्लाह शेख कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इन 4 कुतुब अरबा में से, इन 4 किताबों में से जो किताब लिखी है उसका नाम है अल काफी। बहुत अहम किताब है और बहुत ही मालूमात से भरी हुई ये किताब है। बहुत ही ऐसी किताब है कि जिसे पढ़ना चाहिए और बहुत ही खजाना है, समझिए इसमें उलूम का, इसे पढ़ना चाहिए। और जो इल्म दोस्त हैं वो जरूर इस किताब को पढ़ते भी होंगे, और जिन्होंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है, जो जानते हैं इस किताब के बारे में, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, इससे इल्म में इजाफा होगा। नाज़रीन किराम, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज के हमारे इस एपिसोड का 9वां सवाल और हमारे सिलसिले का 21वां सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह भी सवाल उससे मिलता जुलता। अभी हमने ऑप्शन में पूछा था एक किताब का नाम, सवाल भी वही है कि अल इस्तिब्सार किसने लिखी। अल इस्तिब्सार ये किताब भी कुतुब अरबा में से है। ये किताब किसने लिखी जिसका नाम है अल इस्तिब्सार? इसके ऑप्शंस हैं ए, शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह, बी, शेख सदूक अलैह रहमा, सी, शेख कुलैनी अलैह रहमा, डी, शेख मुफीद अलैह रहमा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना यह है कि किताब का नाम दिया हुआ है अल इस्तिब्सार, वो किताब किसने लिखी। कॉल ले लेते हैं नाज़रीन किराम। हेलो, अलैकुम अस्सलाम। हाँ, आपका नाम? जैन अब्बास पुंजानी। जैन अब्बास पुंजानी। जी जैन साहब, आपने शायद कल भी फोन किया था। हाँ, तो हमने फोन किया था। और आप डोंगरी से फोन कर रहे हैं, है ना? जी, आप बताइए इसका ऑप्शन क्या है सही? 1 मिनट। इसका ऑप्शन है 1 मिनट। नहीं, डी, शेख मुफीद। बी, डी, डी। शेख मुफीद अलैह रहमा। हाँ, यकीन है आपको? हाँ, 1 मिनट। पूछ ले कंप्यूटर से। 50% यकीन है। हाँ जी, 50%। 50% यकीन है आपको, हाँ, और बाकी 50% नहीं यकीन है। नहीं यकीन है। तो ये दूसरा 50% किस पर यकीन है? मुझे शेख लगते हैं। शेख सदूक अलैह रहमा। 50% शेख मुफीद और 50% ऑप्शन बी शेख सदूक अलैह रहमा। तो दोनों में से किसको आपका जवाब तस्लीम किया जाए? शेख मुफीद। शेख मुफीद, इसी पर ज्यादा यकीन है आपको? हाँ, लॉक कर दो। लॉक कर दें। ठीक है, आपके लिए हम डी ऑप्शन लॉक करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आइए नाज़रीन किराम, इसी सवाल के लिए एक कॉल और ले लेते हैं। अल इस्तिब्सार किसने लिखी? हेलो, अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम सर? मैं फिरोज दमानी। फिरोज दमानी। भैया, मेरा आंसर है ए, शेख तूसी। ए, शेख तूसी अलैह रहमा। भैया, शेख तूसी। यकीन है आपको? हाँ, यकीन है।
آپ نے دیکھی یہ کتاب پڑھی ہے ماشاءاللہ؟ ہاں میں نے سنا ہے یہ میں دنیات کلاسز سنا ہے میں نے کہاں سنا ہے؟ دنیات کلاسز میں سنا ہے میں نے دینیات کلاسز میں سنا ہے. آپ دینیات کلاسز جاتے ہیں ماشاءاللہ؟ وہاں جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ہمیں جانا بھی چاہیے, علم حاصل بھی کرنا چاہیے. ہاں شیخ توسی کے استاد شیخ توسی, تو محفوظ کر لیں آپ کے جواب کو. ہاں یقین ہے, ایک بار کر دیجیے. ٹھیک ہے, ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اس سوال کے لیے 2 کال ہم نے لیے. زین عباس پنجانی ڈونگری سے, فیروز دمانی یہ بھی ڈونگری سے. زین عباس نے کہا ڈی شیخ مفید, اور ان کا 50% آپشن تھا, یقین تھا ان کو, اور اس طرف جو ہے رجحان تھا ان کا بی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی طرف. دوسرا کال ہم نے لیا فیروز دمانی صاحب کا, انہوں نے کہا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ شیخ توسی. دیکھیں کس کا گیس اور کس کا یقین کس حد تک کام آتا ہے. کمپیوٹر پلیز بتائیے دونوں میں سے کون صحیح ہے. بہت بہت مبارک ہو فیروز دمانی صاحب, آپ کا جواب بالکل صحیح ہے, اور ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے زین عباس پنجانی صاحب آپ کا جواب غلط ہے. آپ نے 50% کہا شیخ مفید, 50% کہا شیخ صدوق, لیکن یہ دونوں جواب غلط ہوتے. اس کا صحیح جواب ہے آیت اللہ شیخ توسی علیہ الرحمہ, جنہوں نے ایک بہت ہی عظیم کتاب لکھی, اس کا نام ہے الاستبصار. یہ بھی کتب اربعہ میں سے ہیں. آئیے ناظرین کرام چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آج کے ہمارے کوئز کا 10واں سوال اور سوالات کے سلسلے کا 22واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. تاریخ اسلام میں کس خاتون کے لیے پہلی مرتبہ تابوت تیار ہوا؟ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ کس خاتون کے لیے تابوت تیار ہوا؟ آپشن آپ کے سامنے ہیں. ام المومنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا, بی بی جناب آمنہ سلام اللہ علیہا, بی بی جناب آسیہ سلام اللہ علیہا, اور ڈی بی بی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. 4 آپشن آپ کے سامنے ناظرین کرام. سوال ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ تاریخ اسلام میں کس خاتون کے لیے پہلی مرتبہ تابوت تیار ہوا؟ آپشن اے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا, بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا, سی بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا, ڈی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. تاریخ اسلام میں کس خاتون کے لیے پہلی بار تابوت تیار ہوا؟ کس کالر نے ہمیں کال کیا, ہم ان کا کال لے لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام؟ جی زین عباس. زین عباس پنجانی. ہاں جی بولیے. مجھے فاطمہ لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ ہاں سوال آپ سمجھ گئے. ہاں تاریخ اسلام میں کس خاتون کے لیے پہلی مرتبہ تابوت تیار ہوا؟ آپشن ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا, اے بی جناب آمنہ سلام اللہ علیہا, سی جناب آسیہ سلام اللہ علیہا, اور ڈی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ڈی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا. یقین ہے آپ کو؟ یقین ہے آپ کو اپنے جواب پر؟ لاک کر دیں؟ لاک کر دیجیے. جی ٹھیک ہے, ہم بسم اللہ کرتے ہیں. اور آپ کے نے جو آپشن بتایا ڈی, اس پہ تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے 50% کیونکہ اس سے پہلے آپ کا جواب غلط ہو چکا ہے. اس میں آپ کو یقین ہے؟ پوچھ لیں کمپیوٹر سے. ہاں ٹھیک ہے, ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. زین عباس پنجانی ہم سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا ڈی جناب فاطمہ. ہلو, ہلو السلام علیکم.
अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम। हमारा दिल है जी जनाब फातिमा। डी जनाब फातिमा, लेकिन आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद मेहदी पारेख। मोहम्मद मेहदी पारेख। मोहम्मद मेहदी पारेख। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मस्गांव से बोल रहे हैं। मसगांव से। मस्गांव से। मेरा नाम रजिस्टर अतीक है। क्या करते हैं आप? क्या बोले? क्या करते हैं हाँ, आप? स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाते? कौन सी स्कूल जाते हैं? सेंट पीटर्स। सेंट पीटर्स में जाते हैं। और दीनी तालीम कहाँ हासिल करते हैं? दीनी तालीम मेरे तो आपा पढ़ाने आते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, इस्लामिक क्लास में भी जाता हूँ। वेरी गुड। तो आपने क्या ऑप्शन बताया? जी जनाब फातिमा। डी जनाब फातिमा। सलामुल्लाह अलैहा। सलामुल्लाह अलैहा। सलाम हो उन पर हमारा, अल्लाह का सलाम हो। इससे पहले एक आपके हम उम्र ज़ैन अब्बास पुंजानी हमसे बात कर रहे थे, और आपका नाम मोहम्मद मेहदी पारेख, ठीक है? तो आपके जवाब को महफूज कर लें हम। हाँ, मैसेज कर लीजिए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि इसका सही जवाब क्या है। हाँ चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तारीख इस्लाम में किस खातून के लिए पहली बार ताबूत तैयार हुआ? दो कॉलर्स ने हमको कॉल किया और दोनों ने एक ही ऑप्शन बताया, डी जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। कंप्यूटर प्लीज बताइए इनके बताए हुए ऑप्शन सही हैं या गलत। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिन्ते रसूल खातून जिना सिद्दीका ताहिरा राजिया मर्जिया जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कल हमने इनके बारे में एक सवाल पूछा था कि किसका मजार है जिस पर अभी तक साया नहीं। ये तारीख इस्लाम की वही मजलूम तरीन खातून हैं जिन्हें हम बिन्ते रसूल जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। इनके लिए पहली बार ताबूत बनाया, तारीख हमें बताती है कि पहली बार ताबूत बनाया गया, और वो ताबूत इस वाकये के बाद बना कि जब शहजादी को यह इल्म हुआ कि मैं अपने बाबा से मिलने वाली हूं या इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूं, तो उन्होंने जनाब अस्मा को बुलाया और कहा कि अस्मा, मुझे यहां पर का तरीका मुझे पसंद नहीं है। जिस तरीके से यहां पर जनाजा उठाया जाता है उसमें पर्दे का कोई खास लिहाज नहीं रखा जाता। तो जनाब अस्मा ने एक ताबूत तैयार किया जिसमें चारों तरफ से जो है एक बंद इंतजाम था और पर्दे का इंतजाम था। और बीबी को जब बताया तो बीबी के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा कि अस्मा, तूने मेरे पर्दे का ख्याल रखा है, अल्लाह तेरे पर्दे का ख्याल रखे। मैंने इसे पसंद किया, मुझे इसी जनाजे में अबुल हसन से कहना कि ले जाएं। तो यह है उस जनाजे की तारीख जो पहली बार जो ताबूत तैयार हुआ जनाब सैयदा के लिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये थोड़ी सी तफसील मैं इसलिए बताते हुए चलता हूं कि ये बातें कानों में पड़ी रहें, इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी ना कभी ये काम आएंगी। और हम जिनको मानते हैं, जिनको जानते हैं, जो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तरे मोहतरम हैं, उनके बारे में भी हमें मालूमात रखनी चाहिए। नाज़रीन किराम, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज के हमारे इस क्विज का 11वां सवाल और सिलसिला सवालात का 23वां सवाल आपके सामने। सवाल है कि जनाब सालेह नबी ने कितने साल तबलीग की? इन्होंने कितने साल तबलीग की? जनाब सालेह अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं, नबी हैं, उन्होंने कितने साल तबलीग की? ऑप्शन आपके सामने, ए 300 साल, बी 120 साल, सी 23 साल या डी 500 साल। आपको बताना है कि जनाब सालेह पैगंबर ने कितने साल तबलीग की? ए 300 साल, बी 120 साल, सी 23 साल या डी 500 साल। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम? हेलो,
جی میرا نام زینت مرچنٹ ڈونگری سے. جی زینت مرچنٹ ڈونگری سے. زینت مرچنٹ صاحبہ آپ کا استقبال ہے حق چینل کے اسٹوڈیو میں. جی تھینکس. ڈونگری سے بول رہے ہیں آپ؟ ہیلو. جی بولیے. جی آپ کوشچن مجھے ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ کوشچن ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں آپ کے لیے کہ پیغمبر اور جو نبی ہیں جناب صالح علیہ السلام انہوں نے کتنے سال تبلیغ کی؟ آپشن ہے اے 300 سال، بی 120 سال، سی 23 سال یا ڈی 500 سال. ہیلو. جی جی اس کا آنسر ہے آپشن اے 300 سال. جی آپ نے کہیں سنا ہے، پڑھا ہے؟ جی میں نے پڑھا ہے. آپ نے پڑھا ہوا ہے تو کیا ہیلو. کیا کریں؟ ہم پوچھ لیں کمپیوٹر سے. آپ کی آواز کلیئر سے آ رہی ہے. ہم آپ کے اس جواب کو محفوظ کر لیں. کنفیوژن ہے. پلیز ویٹ ایک منٹ میرا ویٹ. ہیلو. جی ہیلو. آپشن اے 300. آپشن اے 300 ایئرس جی یہ آپ کا فائنل جواب ہے؟ مجھے پھر بھی تھوڑا کنفیوژن ہے. کس آپشن پہ کنفیوژن ہے؟ 300 بھی لگ رہا ہے 120 بھی لگ رہا ہے. 300 بھی لگ رہا ہے اور 120 بھی لگ رہا ہے. جی بس کنفیوژن ہے. تو آپ سوچ لیجئے 300 سال یا 120 سال. کیا بول رہے ہیں؟ تو آپ سوچ لیجئے کہ 300 سال یا 120 سال. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. آپ اچھے سے سوچ لیجئے آپشن اے یا آپشن بی. ہمیں آپ کے جواب کا انتظار ہے. ہیلو. جی تو ایک کام کرو آپشن اے محسوس کر لیں. جی ہلو. آپشن اے محسوس کرتے ہیں. آپشن اے غالباً جہاں تک ہم سمجھے آپ نے کہا آپشن اے. تو اے کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں. بیچ میں آپ کا کال ڈراپ ہو گیا لیکن آپ نے اپنا آپشن بتا دیا تھا. آئیے ناظرین کرام اگلا سوال لیتے ہیں. یہ تھی زینت مرچنٹ ہم سے جو بات کر رہی تھی. ہلو. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سیدہ بھیمانی. جی شاید تو اے 300 تھا. ہاں ہاں ایک منٹ اور ریپیٹ کریں. کوشچن ریپیٹ کر. جناب صالح پیغمبر نے کتنے سال تبلیغ کی؟ اے 300 سال، بی 120 سال، سی 23 سال، ڈی 500 سال. یہ شاید 300 سال کا ہی. جی ایک منٹ تک کنفیوژن ہے 300 سال یا ڈی 500 سال اور ڈی 120. بی 120 کیا ہے آپ کا؟ ایک منٹ. اے 300 نہیں ڈی 120. بی 120 ہاں یقین ہے آپ کو؟ ڈی 120 10. محفوظ کر لیں آپ کے جواب کو. ہاں ہاں ڈی 120. ٹھیک ہے پوچھ لیں کمپیوٹر سے. ہاں ہاں اوکے بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا سوال تھا. جناب صالح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 300 سال، 120 سال، 23 سال یا 500 سال. دو کال ہمیں ملے زینت مرچنٹ جنہوں نے کہا اے 300 سال. وہ کنفیوز تھے اے اور بی میں لیکن فائنلی جب ان کا کال ڈراپ ہوا تو انہوں نے کہا اے 300 سال. اور دوسرا کال تھا سیدہ بھیمانی کا جنہوں نے کہا آپشن بی. یہ بھی تھوڑا سا کنفیوز تھی لیکن انہوں نے فائنل جواب دیا بی 120 سال. کمپیوٹر پلیز بتائیے دونوں میں سے کون سا آپشن صحیح ہے؟
ऑप्शन 20 राइट आंसर, 120 साल। मुबारकबाद पेश करते हैं हम आपकी खिदमत में सिस्टर सैयदा भीमानी कि आपने इसका सही जवाब दिया, अपने कंफ्यूजन को और अपनी उलझन को दूर किया और सही ऑप्शन तक पहुंचे। और जीनत मर्चेंट साहिबा, आप भी काबिल एहतराम है क्योंकि आपने कोशिश की और आपने कहा कि हमने पढ़ा है। और ऑप्शन देख के अक्सर जिसको याद भी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि 300 साल है या 120 साल है, ए है, बी है या सी है। तो ऐसा होता है, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप सही जवाब के बिल्कुल करीब थे। हम आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि नाजरीन जिस तरह अब तक हमारा हौसला अफजाई करते आ रहे हैं वो इसी तरह करते रहेंगे, हमें कॉल करते रहेंगे, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेते रहेंगे और इसी तरह हमारे प्रोग्राम को कामयाब करते रहेंगे। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ जो है हमारे सिलसिले का 24वां सवाल और आज के हमारे क्विज का 12वां सवाल और आखिरी सवाल। तो तैयार रहिए। आखिरी सवाल है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अल्लाह ने अपने नूर से जनाब सैयदा की तख्लीक की। ठीक है, अल्लाह ने अपने नूर से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की तख्लीक की, उनको खल्क किया और उसके बाद उन्हें कौन सा लक़ब दिया? 4 अलकाब आपके ऑप्शन में मौजूद हैं। ए सैयदा, बी ताहिरा, सी जहरा या डी सिद्दीका। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा लक़ब है जो अल्लाह ने अपने नूर से शहजादी आलमियान को जब खल्क किया उसके बाद वो लक़ब दिया। हेलो हेलो सलामुन अलैकुम। हेलो सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रुशाद रूपानी। जी, क्या बताया नाम? रुशाद रूपानी। इरशाद। रुशाद। कहां से बोल रहे हैं आप? डोंगरी। डोंगरी से बोल रहे हैं। क्या सरनेम बताया आपने? रुशाद। माफ कीजिएगा, हमें आपका नाम समझ में नहीं आ रहा है। आप अपना सरनेम बताइए। रूपानी। रूपानी। बहरहाल आपके नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड है नहीं है? नहीं है। आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास। रुशाद फातिमा रूपानी। कंप्यूटर बताइए, जो ये नाम बता रहे हैं इसके नाम से रजिस्टर्ड है। इनका नंबर है 9819465309। एक मिनट। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, हमने ही नाम लिखा है तो रुशाद फातिमा रूपानी पहला बिल्डिंग और यही नंबर है। रुशाद फातिमा। हाँ, अजहर अली रूपानी। कब रजिस्टर्ड करवाया था आपने? हाँ, ये रमजान से 10 दिन पहले। अच्छा, और कार्तिक पैसे ना उनके ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। किस नाम से था ये? सॉरी, किस नाम से रजिस्टर्ड था? रुशाद फातिमा अजहर अली रूपानी। ठीक है, आप उन्हें फोन दीजिए, वो हमें जवाब देंगे। ओके। हेलो जी, सवाल आपने समझ लिया? हेलो जी बोलिए। सी जहरा। यकीन है आपको अपने जवाब पर? हाँ, अल्लाह ने अपने नूर से जनाब सैयदा को खल्क किया तो उन्हें कौन सा लक़ब दिया? आपने कहा सी जहरा। हाँ, महफूज कर लें? हाँ। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुशाद फातिमा रूपानी हमसे इस वक्त बात कर रहे थे। एक कॉल और ले लेते हैं इसके लिए। हेलो हेलो, अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, रुखसार मर्चेंट से। रुखसार मर्चेंट कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, डोंगरी से बोल रहे हैं हम। डोंगरी से बोल रहे हैं, जी बोलिए। जी हेलो। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमें। सर रिपीट करो ना प्लीज। जी, क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन रिपीट करें।
ٹھیک ہے, क्वेश्चन جی हम ہاں. रिपीट करते हैं कि अल्लाह ने अपने नूर से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को खल्क किया और उसके बाद शहजादी को एक लक़ब दिया. वो लक़ब कौन सा है वो आपको बताना है. ऑप्शंस आपके सामने है. ए सैयदा, बी ताहिरा, सी जहरा या डी सिद्दीक़ा. हमें लग रहा है जहरा है, पर मुझे ताहिरा में और जहरा में कंफ्यूजन हो रहा है. ताहिरा में और बिकॉज सैयदा उनका नाम था और ताहिरा और जहरा में मुझे ऐसा से कंफ्यूजन हो रहा है. जी जी, एक मिनट देखिए फॉर्म. तो आप अपने हेलो? शक को दूर कीजिए, अपनी उलझन को दूर कीजिए और यकीन की मंजिलों तक आइए और बताइए कि सही ऑप्शन कौन सा है. जी 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 बता रहे हैं. डी ताहिरा है इसका आंसर. डी डी ताहिरा. बी ताहिरा. जी अभी आपसे पहले एक सिस्टर जो हमसे बात कर रहे थे उन्होंने कहा सी जहरा, आप कह रहे हैं बी ताहिरा. उन्होंने कहा जहरा. जी, अच्छा. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जो पहले कॉलर ने जो ऑप्शन बताया दूसरा कॉलर भी वही बताता है. नहीं ऐसा नहीं है. हाँ हो सकता है वो भी सही हो, बट एक मिनट मुझे लग रहा है जी, जहरा. जहरा. जी सी ऑप्शन. पहले आपको लगा ताहिरा, जी पहले आपको लगा बी ताहिरा. जी मुझे लगा पहले ताहिरा है, बट अभी मुझे जहरा तो कंफर्म कर दूँ. जहरा को ऑप्शन सी. जहरा को महफूज कर दे. हेलो हेलो. जी जी, आपकी आवाज आ रही है. हाँ आपके पास भी आ रही है. अपना फाइनल आंसर बताइए आप. मुझे जहरा सी. ऑप्शन सी आपने कहा. जी जी जहरा. फाइनल आंसर है ये आपका. जी और मुझे इतना कंफ्यूजन तो लग रहा है कि मोशन वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए. अच्छा, हेलो. तो अब आपको यकीन है. जी जी ठीक है, जहरा. जहरा. बहुत बहुत शुक्रिया हमको कॉल करने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए. नाज़रीन किराम, दो कॉल रुशैद फातिमा रूपानी और रुखसार मर्चेंट डोंगरी से. सवाल था अल्लाह ने अपने नूर से बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को खल्क किया और उन्हें एक मखसूस लक़ब से नवाजा. चार ऑप्शन आपके सामने हैं. सैयदा, ताहिरा, जहरा, सिद्दीक़ा. दोनों ने कहा थोड़े थोड़े से कंफ्यूजन के साथ, दोनों ने कहा ऑप्शन सी जहरा. कंप्यूटर प्लीज बताइए क्या ये ऑप्शन सही है. ऑप्शन सी बिल्कुल सही है. जहरा सलामुल्लाह अलैहा रोशन, नूरानी, बेशक क्या कहने उस जात के बारे में जो आज तक मजलूम है. आज तक उस बीबी का मजार बेसाया है. कभी साजिश के बादल में, कभी बिदत की चादर में तेरे औसाफ दुनिया ने छिपाए फातिमा जहरा. समंदर को मगर क्या कैद कर सकती है ये दुनिया, किताबे हक से छलकेगी सनाए फातिमा जहरा. खालिक ने जिसे अपने नूर से खल्क किया, उम्मत ने उसके मजार को बेसाया कर दिया. उम्मत मुस्लिमा के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, ये सोचने वाली बात है कि कायनात के सबसे बड़े रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम अपनी जान को फिदा कर देते हैं, लेकिन उसी रसूल ने जिसे अपने जिगर का टुकड़ा कहा है, उसकी मजार को बेसाया देखकर हमारे दिल में अफसोस होना चाहिए. अभी ये रमजान का महीना गुजरेगा, 8 शव्वाल आएगी. 8 शव्वाल वो दिन है कि जिस दिन कुछ तागूती ताकतों ने
कुछ मगरूर हुकूमतों ने बीबी के मज़ार को मुनहदिम किया। हमारी दुआ है बारगाह रब्बुल इज्जत में कि हमें ईमान में वो जोश अता कर कि हम उस मज़ार को तामीर कर सकें और इस निशानी को दोबारा आबाद कर सकें, ताकि क़ल्ब रसूल को सुकून पहुंचे, क्योंकि हम उनके उम्मती हैं और यही हमारा हक भी है। ठीक है नाज़रीन कराम, आज के हमारे क्विज का सवालात का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। हमने इन सवालात के जरिए कुछ पैगामात और कुछ इल्म आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हम इस कोशिश में कितने कामयाब हैं, अपनी राय से हमें जरूर नवाजिए। और जो कॉलर्स, जो हमारे सामीन हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, जिन्होंने अभी तक अपने नंबर को रजिस्टर नहीं करवाया है, वो जरूर करवा लें, ताकि वो अच्छे से हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें। नाज़रीन कराम, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार इस कायनात में जहां जहां भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, सबकी जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। इजाजत दीजिए, शब बखैर, अल्लाह हाफिज नासिर। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार